tell me about yourself. Ma'am, my name is Akanksha Thakur. My father name is Mr. Gajendra Singh Thakur. He's a government employee, work as a panchayat secretary. My mother name is late Mrs. Kusum Thakur. She was a homemaker. I was born and brought up in Ashta, district Sihor, Madhya Pradesh. I have done my schooling from there itself. Then I have done my graduation in Bachelor of Arts from DAVV University. Later I have pursued a master's degree in geography. Okay. So Kanksha, you say that you completed your BA in arts and then MA. So why you want to join banking? Because वो सेक्टर जो है वो ये सेक्टर डिफरेंट नहीं है. Ma'am, RRB PO itself is for the rural sector, and as my father is a panchayat secretary, so I have seen him working to the rural sector. So I was more inspired and lean toward rural. So I think so this is a good opportunity for me to connect with the people. Okay. Do you heard about e-banking? Yes, ma'am. What is e-banking? E-banking, in which all the banking facilities that are available, like transaction and that available to you through mobile services. Okay. What is capital adequacy ratio? Ma'am, capital adequacy ratio is the weighted average ratio that you have to keep yourself giving your credit, so that if bank fails to pay, if bank fails, so they can recover their money from there. And why you want to join bank? Ma'am, because I think I have a good communication skills, and the banking itself show a good structured environment, which I think my professional values are associated with it, and that's why and it shows a growth career oriented organization, that's why. Okay. Give me benefits of fixed deposit. Ma'am, it is for the fixed interval of time you have to keep your amount, and it gives you a lump sum amount of interest, then saving account, and that's it. What is the maturity period of FD? Ma'am, it can differ from 7 days to 10 years. Okay. So Akanksha, tell me about core banking solutions. Ma'am, core banking solution, I think transparency and the trust loyalty that have, and feasibility to access, and that's. Okay. Can you comfortable in Hindi? Yes, ma'am. आप जितना इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट करती हैं, आपको पता है जो रूरल बैंक्स होते हैं, जो आरआरबीज हैं, वो गांव में ही होती है मेजरली जी. और जी. किसान लोग ज़्यादा आते हैं, मतलब आपके जो कस्टमर्स रहेंगे वो भी रूरल एरिया के रहेंगे. Yes, तो आप कैसे डील करेंगे? आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा वहाँ पे? नहीं मैम, बिकॉज मेरी मदर टंग हिंदी लैंग्वेज है, तो मुझे लगता है मैं दोनों लैंग्वेज में अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकती हूँ. अच्छा. यस मैम. ऐसे भी आपके पास कस्टमर्स आएंगे जो शायद मालवी बोलते हो, निमाड़ी बोलते हो, यस मैम. है ना? यस मैम. तो फिर वहाँ पर आप कैसे डील करेंगे? बिकॉज मैम आई हैव बिलोंग टू अ मालवा कल्चर एंड आई नो द मालवी लैंग्वेज एज वेल. ओके, नाइस. जी, यू नो अबाउट जीएसटी? यस मैम. अच्छा, जीएसटी की स्लैब्स बताइए आप मुझे. मैम, इट इज़ 12%, 18% एंड 40%. श्योर हो आप? यही है? यस मैम, राइट नाउ आई एम एबल टू रिकॉल इट. ओके, ठीक है. जीएसटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है? मैम, इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स. तो फिर डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दीजिए मुझे. इनकम टैक्स. क्या है दोनों में डिफरेंस? मैम, डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी डायरेक्ट टैक्स किसी और पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते. इनडायरेक्ट टैक्स यू कैन शिफ्ट योर अमाउंट टू अदर ऑल्सो. और कोई जैसे कि डिफरेंस? वैल्यू एडेड टैक्स नहीं मैम. ठीक है. क्रॉप लोन के बारे में आपने सुना है? यस मैम. क्या होता है क्रॉप लोन? इसमें आपको देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्रॉप लोन होता है और एग्री लोन होता है. क्रॉप लोन में आपको पर्टिकुलरली क्रॉप से रिलेटेड ही लोन दिया जाता है, एंड एग्री लोन में आपको पोस्ट हार्वेस्ट जैसे कि मशीनरीज़ है, इन सब के वजह के लिए भी आपको लोन दिया जाता है. देखिए, आरआरबीज जो हैं आप बता रहे हो कि रूरल एरिया में वर्क करती है. कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो भी जनरली वहीं वर्क करते हैं, Yes, है ना? ma'am. क्या डिफरेंस है आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स में? सॉरी बेटा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट. ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आप अवेयर हैं?
कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, Yes, ma'am. क्या डिफरेंस है दोनों में? Ma'am, capital market is related to stock market as well, and money market is for the banking sector, in which the transaction of money is there, अच्छा, lending and कोई credit. मनी मार्केट के कोई दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप बता सकती हैं? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, मैम आई एम नॉट एबल टू चलो ठीक है, कोई बात नहीं। SIR क्या होता है? SIR क्या मैम, है? SIR is a special revision, special intensive revision. It is for the people who are जो eligible हैं, that should not be electoral roll से बाहर नहीं होने चाहिए, और जो uneligible हैं, that should not be included in the voter list. ठीक है। स्ट्राइक अभी हुआ था बैंक का, ठीक है, Yes, 5 ma'am. डेज वर्किंग का। क्या आप बैंक में हैं और आप 5 डेज वर्किंग की जो स्ट्राइक है उसमें शामिल होती? Ma'am, as I have no experience about this, first of all, I will ask the my senior to know about this, कि what is the, if it is beneficial or not, and if and then in my opinion, I think so. It will balance the work life for the women also, and as we are moving toward digitalization, so I think so there will be no problem if we will get 5-day working in a week. ओके। आकांक्षा, टेल मी, हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस? Ma'am, first of all, I meditate. And I have a very calm nature. I sit one place and I write all the things that I have in my mind, and then I release my stress. And ठीक है, आप ये बताइए, जैसे आपको पता है बैंकिंग के जो जॉब है आजकल बहुत ट्रेंड है कि बहुत प्रेशराइज जॉब होता है, लोग जॉब छोड़ रहे हैं, सुना होगा आपने भी, है ना? तो हाउ यू हैंडल द प्रेशर ऑफ बैंक? ma'am, I think so because I have a very family situation I have seen since my childhood. So I think so I can manage, or I can handle every stress that I have. ओके, आप बता रहे हैं आपने चाइल्डहुड से काफ़ी सिचुएशंस देखी है। आपको एक ऐसी आपका लाइफ एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आपने प्रेशर को हैंडल किया हो बहुत अच्छी तरीके से। Ma'am, I have lost my mother when I was 16. So I have my younger siblings. So here they was only just 7 year or 6 year. So I have taught them, and I have मतलब घर की सारी सिचुएशन मैंने हैंडल कर रखी थी। Nice. तो अभी आई एम सो वेल सिचुएटेड कि मैं सारी सिचुएशन आराम से हैंडल कर सकती हूँ। नाइस। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? Ma'am, I think so. I have a learning capacity. I will learn everything that comes to me, and I have a good communication skill. So I think so I can become an asset to the organization, Okay. and will grow with the banking organization. अगर आप एसेट हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मुझे ये बताइए कि इसके अलावा और कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं RRBs के पास? First is the bank employees. Second is the loyal customers. एम्प्लॉयज़ एसेट्स होते हैं? मैम, बिकॉज दे विल इम्प्रूव द, मतलब वो लोग बाहर से कनेक्शन बना के कस्टमर्स को लेके आएंगे, तो दे विल अल्टीमेटली बिकम द एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द लाइबिलिटीज। ओके, आई थिंक सो। और यस मैम, राइट नाउ। अच्छा, जो बैंक का इंफ्रा होगा वो क्या होगा, एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा? इंफ्रा इज एन एसेट। लाइबिलिटीज़ बता दीजिए बैंक की फिर आप। मैम, द लाइबिलिटी आर द interest they have to pay if they take the loan. And that's it. I am not चलिए, able to ठीक है, recall right. डिस्क्राइब करेंगे BPLR को? So BPLR is a below poverty line. नहीं, इन बैंकिंग टर्म्स में। Sorry sir, I am not able to recall. PLR? PLR. No sir, sorry. दिस इज जनरल बैंकिंग टर्म्स। एक होता है NPCI, बताएं। Yes sir, National Payment Corporation of India. It is a company that is who has launched this IMPS, Immediate Payment System, and UPI also work under NPCI only, and it is for the banking transaction things. रेपो रेट को डिस्क्राइब करोगे? Sir, repo rate is a quantitative tool of RBI, in which the RBI lends the money to the bank by taking a securities. करंट रेपो रेट? Interest, that is करंट रेपो रेट। current repo rate. Sorry sir. रिवर्स रेपो रेट? Sir, reverse repo rate, in which RBI takes the money from bank, and it is mainly to absorb the liquidity in the market. That's why they take against security. ये अभी कितना है करंट में रिवर्स रेपो रेट?
Sir, maybe around 3.25. I am not sure. आकांक्षा, क्या मतलब होता है आपके नाम का? Sir, Akanksha comes from a Sanskrit word which means deep desire or aspiration or hope. मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है ग्रामीण क्षेत्र का जो आता है बैंक के अंदर और उसको फॉर्म भरना भी नहीं आता, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? Sir, I will first make him to sit. ऐसे ही समझाएंगे जैसे आप अभी समझा रहे हैं? नहीं सर, मैं उनको बोलूँगी कि सर आप प्लीज़ बैठिए, मैं आपको फॉर्म दूंगी, फिर उनसे सारी जानकारी लेके इफ़ ही इज़ नॉट, अगर वो नहीं लिख पाएंगे कुछ भी चीज़, तो मैं उनसे पूछ के उनका फॉर्म फिल करके उनको सारी जानकारी बता के, या फिर अगर उनके साथ कोई कंपेनियन आया होगा तो उनसे पूछ के सारे फॉर्म उनको फिल करवाऊँगी। तो ऐसा तो आपको 90% केसेस में बार बार करना होगा। यस सर, आई विल डू, क्योंकि बैंकिंग रूरल में यही एरिया है कि आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूड करना है। तो फिर तो आपके प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा ना इस बात से, तो आप अपना बैंक का काम कब करेंगे और इसे समझाने में ही लगी रहेंगी? नहीं सर, आई विल कोई दोनों। दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके दिमाग में कि वो काम भी हो जाए और आपके बैंकिंग एक्टिविटी में इफेक्ट ना पड़े? सर वहाँ पे उनको एक बार समझा दिया जाएगा, या फिर उनको हमेशा बोल दिया जाएगा कि आप अपने साथ एक कंपेनियन लेके आए ताकि वो आपका फॉर्म कंप्लीट कर सके। अब किसी के पास नहीं है, बूढ़े लोग हैं, चले आ रहे हैं, तो सर आई थिंक सो एक बैंक मित्रा और बैंक सखी करके भी होते हैं जो विलेजेस में होते हैं, तो वो हेल्प कर सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए। तो मतलब आप उनसे कह देंगे कि आप हमारे पास मत आया करिए, वहाँ जाया करिए? नहीं सर, ऐसा नहीं कि अगर वो खुद बैंक मित्रा बैंक सखी, इसको हम लोग हमारे ब्रांच में भी बुला सकते हैं, बट इफ़ वी हैविंग अगर बैंक लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे वी कैन हेल्प, और अदरवाइज वी विल हेल्प एंड वी आर रेडी टू हेल्प द कस्टमर्स। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी ब्रांच में अपॉइंट होती हैं तो बैंक में अक्सर भीड़ देखने को मिलती है, उस भीड़ को कैसे कम किया जा सकता है? क्या ऐसा आप प्रयास करें, उपाय करें कि वो भीड़ कम हो और बैंकिंग जो एक्टिविटी है वो भी इंटरप्ट ना हो? सर पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि वो किस वजह से भीड़ हुई है, कि डिपॉजिट के लिए है या चेक के लिए है या लोन के लिए है। अगर वो है तो सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे भी हैं सबको अलग अलग क्यू में स्टैंड करके, ताकि उनकी सारी चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर एक ही जैसे एक तो बार बार उनको बोलते नहीं आप उस डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पे जाके कर सकते हो यहाँ पे, तो ऐसे पहले ही उनको बता दिया जाएगा कि आपको इस चीज़ के लिए उस डिपार्टमेंट में जाना है, तो आई थिंक सो वो। नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि भीड़ को ही हमको कम करना है, घर बैठे वो सुविधाएं उसको मिल सके, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर फिर उनको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बताना पड़ेगा। फाइनेंशियली जो आप मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, आप वहाँ से सारी छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करना है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बोल देना और ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग बातें होती? क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि फॉर्म भरना नहीं आता, अब आप उसको कैसे डिजिटल तरीके से समझाएंगे, बताएंगे? जब उसे फॉर्म भरने ही नहीं आता तो ये तो वो उसके लिए बहुत दूर की बात हो गई, तो ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया ना। तो इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है? और अगर आप ये आइडिया दे रहे हो तो ये आइडिया किसी को अभी तक नहीं आया क्या? इसका मतलब यही हुआ। तो अगर आइडिया आया है इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो आप क्या कुछ नया करेंगे, ये हम जानना चाह रहे हैं। सर आई थिंक सो आई विल मेक अवेयरनेस कैंप इन पंचायत लेवल, और जो बैंक मित्रास के साथ जाके सारे लोगों को एजुकेट करना, और फिर उनको पोटेंशियली सारी बैंक के फैसिलिटीज़ के बारे में बताना, और एजुकेशन अवेयरनेस फाइनेंशियली बार बार करनी ही पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्लूड करना पड़ेगा। आप किसी बैंक में गए कभी? यस सर। कौन सा बैंक? यूको बैंक। यूको बैंक में आपको कोई भी एक ऐसा एम्प्लॉय देखने को मिला है जो बैंकिंग को डिजिटलाइज तरीके से प्रमोट करने के लिए काम करता रहता है, ऐप के बारे में जानकारी दे या कुछ करे, ऐसा कोई दिखाई दिया है आपको कभी ऐसा? नो सर, आई हैवंट सीन। क्या ऑब्जर्व करती हैं आप बैंक के अंदर जब जाती हैं? So whenever I have went there, it just for the purpose of my own things. So I have just seen कि many rural people also comes there, but बहुत rare of the rare cases होता है just वो आके अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और इधर उधर कहीं उनको ट्रांसफ़र करना होता है, तो I haven't seen anything. अच्छा ठीक है, मेरे पास चेक बुक है और मैं इनके नाम पे पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो बैंक में जाके क्या NEFT कर सकता हूँ? चेक के थ्रू NEFT कर सकता हूँ मैं या RTGS बैंक में जाकर? Sir, there is a CTU, I think so, check truncation, but I don't know about NEFT or RTGS.
ठीक है, पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में आपने सुना है? ये कभी चर्चा में था कुछ समय पहले, आरबीआई की कुछ गाइडलाइन आई थी इसको लेकर के। Pardon, sir, what is? पॉजिटिव पे सिस्टम No, sir, I haven't. या सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम, Yes, sir, CTS. और सरल भाषा में मैं कह देता हूँ, दूसरी एक व्यवस्था उसके लिए अभी गाइडलाइन थी कुछ चेक क्लियरिंग के लिए। क्या बात थी? सर, इसमें आपको फिज़िकल चेक नहीं देना पड़ता है। आपका जो फिज़िकल चेक है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू चेंज कर सकते हैं, और उससे जो विंडो है फॉर क्लियरिंग द चेक वो 9 AM to 3 PM होती है, तो इन 7 hours इट मे गेट क्लियर्ड। और अभी आई थिंक सो गाइडलाइंस आई है कि 2 hours के अंदर अंदर भी इन phase 3, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ। ठीक है, आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सारी होती हैं, लोगों को पता नहीं होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके बारे में कैसे अवेयरनेस दी जाएगी जो एक्चुअल हो सके? आपको हवा में बातें नहीं करनी कि ऐसा हम कर देंगे, जो आप कर सकते हैं, जो किया जा सकता है एज अ बैंकर, वो बताइएगा। सर, वैसे 4 या 5 हैं, जैसे KCC हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके लिए अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में उन लोगों को क्रॉप के लिए क्रेडिट चाहिए ही होता है, तो इसके लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। दे विल गेट फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ से बहुत सारे टाइम पे ये डिस्टर्ब रहती हैं। और वी कैन अश्योर देम फॉर द जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एज वेल। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अभी यूजीसी का एक मुद्दा चल रहा था, यूजीसी का, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये स्ट्राइक चल रही थी? सर, और अभी कई आंदोलन ऐसे भी सामने आए कि 1 फरवरी को अलग लेवल पर कुछ स्ट्राइक करने वाले हैं, तो क्या मैटर है? सर, एज आई हैव रेड कि इसमें ये जो जितने भी गाइडलाइंस है दे वर नॉट क्लियर, और जो डिस्क्रिमिनेशन है SC STs के साथ इंक्लूड कर दिया है OBC को भी। इफ़ द डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट देम, SC ST OBC के अगेंस्ट में होगा, तो जनरल कैटेगरी को ही पनिश किया जाएगा कि हाँ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो आपके अनुसार जो डिसीजन आया है ये सही है या गलत है? सर, आई थिंक सो कि डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। यू शुड नोट द ग्राउंड रियलिटी कि एक्चुअल में हुआ क्या है, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। पनिशमेंट भी क्लियर नहीं है कि क्या पनिशमेंट होगा, और अगर गिल्टी SC STs हैं तो उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है आगे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने MA किया है ज्योग्राफी से और आप बैंक की तैयारी कर रही हैं, तो ये ज्योग्राफी से MA करने के पीछे का रीज़न क्या था आपका? सर, ज्योग्राफी से MA करने के लिए मुझे सारे फिज़िकल एस्पेक्ट्स पता है, हर चीज़ों के, जैसे क्रॉप के पता है, सॉइल की प्रोफाइल पता है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी जो रूरल पीपल को होती है वो भी सब, इसके लिए इसके मुझे लिए इतना जानने के लिए MA करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं सर, मैंने बैंकिंग के रिलेटेड नहीं किया था इसको मेरे बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये पढ़ने के लिए कि क्या फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं, कैसे पॉलिटिकल चीज़ें होती है, क्या क्या देश में हो रहा है, ऐसे करके, तो मैंने फिर इसलिए जॉब। पॉलिटिकल चीज़ें देश में हो रहा है ये ज्योग्राफी में पता चली? नहीं, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है, कहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, ये सब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाता है। ठीक है, तो बताएं ज़रा आपने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर? सर, ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी आई हैव रेड, जियोमॉर्फोलॉजी आई हैव रेड, ओशियन के बारे में सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी। मुझे आप बताइए, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक कुछ पीछे हो गई है। कुछ समय पहले हम 10 नंबर पे थे, अब 23 पे चले गए, तो क्या रीज़न है? सर, देर वर मैनी रीजन्स, जैसे रेनफॉल का इरेटिक रेनफॉल की वजह से, मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से जो सी वाटर राइजिंग हो रहा है वो प्रॉब्लम है। अल्निनो लालिनो में चेंजेस हो रहे हैं, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये तो सबको पता होगा जो बातें आपने बताई, और आपने अलग से क्या पढ़ा है वो मुझे बताइए। चलिए मैं इशू आपको बताता हूँ। अभी ग्रीनलैंड का इशू सुना है आपने? वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है, तो उसमें अब अमेरिका उसको अपने कब्जे में लेने की सोच रहा है, क्योंकि सुनने में आया कि क्रिटिकल मिनरल्स उस ज़मीन के अंदर है, रेयर अर्थ मेटल्स वहाँ पर हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों वो वहाँ की बर्फ़ मेल्ट हो रही है? सर, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इट इज़ मेल्टिंग, टेम्परेचर की वजह से ही वो मेल्ट हो रही है। और USA उसको इसलिए करना चाहता है क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ा टेम्परेचर बढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है?
आई थिंक सो द एंथ्रोपोजन का जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसकी वजह से भी हैं सारी चीज़ें, जैसे कि ओजोन लेयर का डिक्रीज़ हो रहा है. देखिए ये तो हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्यों हो रहा है? सर क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि एसी के लिए पूछ सकते हैं, रेफ्रिजरेटर से निकली हुई जो गैसेस होती हैं, ये सब नेचुरल प्रॉब्लम कर रही है. और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं दिखता आपको? नो सर, देयर आर मेनी नेचुरल रीज़न ऑल्सो, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से ये और? चीज़ें हो रही है. दैट्स इट अभी. कार्बन एमिशन नहीं समझ में आ रहा, पॉल्यूशन ये जो होता है गाड़ियाँ चलती Yes, पेट्रोल sir. डीजल वाली, ये भी तो एक बहुत बड़ा रीज़न है. इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है कोयले को क्रश करके जला करके, तो उससे भी तो कार्बन एमिशन ही होता है. तो ये सब तो रीज़न है. तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सर इसके लिए बहुत सारे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसके लिए नेशनल लेवल पे? सर आई थिंक अभी इंटरनेशनल लेवल पे UNEP से मिलके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि कार्बन एडजस्टेड नेट रेशियो है कुछ, और कार्बन न्यूट्रलिटी होता है, फिर ऐसे थोड़े बहुत चीज़ें. सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. ठीक है. आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था? सर 2019. और एमए? 2021. वन. तो अभी आपको, हम 2026 में हैं, अभी 5 साल हो गया यहाँ तक आते हुए, ऐसा क्यों? Sir, because of my family issue, I haven't studied after COVID-19, but I have to keep myself refreshed. So I was doing home tuition at my home, and I was teaching my आसपास के लोगों को मैं डांस भी सिखाती थी, because I have interest in that. फिर ये 4 साल 5 साल आपने यूँ ही निकाल दिए. कब सोचा आपने बैंक की तैयारी का? Sir, in 2024. 24 में. इतना लेट क्यों सोचा? आप पहले भी सोच सकते थे. Yes, sir. कैसे इंटरेस्ट जगा बैंक की तरफ आपका? सर नॉट पर्टिकुलरली फॉर द बैंक, बट जैसे ही मुझे कोई एक अपॉर्चुनिटी मिली कि क्योंकि मेरा 11th-12th में मैथ्स बैकग्राउंड था, तो आई थॉट कि आई कैन डू बेटर हियर, सो दैट्स वाई. मुझे आप एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आरआरबी बनाने के पीछे का मोटिव क्या था? सर आरआरबी बनाने का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं था. इनका मोटिव था कि हम लोगों को रूरल सेक्टर और जो अंडर सर्व प्रायोरिटी सेक्टर है उनको इंक्लूड करना था, ताकि फाइनेंशियल जो इंक्लूजन की चीज़ें हैं और जो फाइनेंशियल एबिलिटी है, फैसिलिटीज़ हैं, जो लास्ट माइल तक हम लोग को पहुंचाना था. दैट्स वाई. ठीक है. ठीक है आकांक्षा, थैंक यू. ओके. बढ़िया बोल रही हैं आप. बस मुझे थोड़ी एक कमी लग रही है जो मैंने महसूस किया है कि जूझ नहीं रही हैं आप क्वेश्चन से. जहाँ पर हमने आपके ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस पूछे हैं ना, जूझना समझते हैं ना, कि आंसर के लिए लड़ना कि हम आंसर करेंगे, आप उसको टाल रही हैं. आंसर क्वेश्चन जैसे मैंने किया ना, टाल रही हैं, बस कुछ बोल के ख़त्म करना है कि यहाँ से बातें ख़त्म हो जाए. और जब आप ऐसा करेंगे तो हमको समझ में तो आ ही जाएगा ना. तो आप ऐसे टाले नहीं, उसको एकदम बिल्कुल इंटेंसिफाई होकर के आंसर दीजिए. क्योंकि जब जिसने मास्टर्स किया होता है तो उससे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं. बीए से एमए अलग है, बीएससी से एमएससी अलग है, बीबीए से एमबीए अलग है. एमबीए मतलब मास्टर्स, एमए मतलब मास्टर्स किया आपने. जब मास्टर्स किया है तो फिर पूछा जाएगा, और फिर आपने उस क्वेश्चन को टाला, वो दिख जाएगा. आपको नहीं महसूस हो रहा आप टाल रहे हैं? हाँ सर, मुझे लग रहा था मैं ज्योग्राफी में थोड़ा क्वेश्चंस हाँ. नहीं कर पाई, क्योंकि अभी इतने दिन से प्रिपेयर कर रही थी, तो बैंकिंग सेक्टर से ही प्रिपेयर कर रही क्वेश्चन थी. टालो मत. है ना? मैं थोड़ा आज देखो, पढ़ के. देखो, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा? अप्रोच. हर क्वेश्चन जो मिला है ना, उसको हमको उसमें अपना 100% देना है. अगर हमने आपसे पूछा आपकी हॉबी क्या है, तो उस पर 100% दीजिए. आप बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में आप उसको बताइए. बैंकिंग पूछा, आप बैंकिंग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए. करंट अफेयर्स पूछा, उसमें बताओ. ज्योग्राफी आपका एमए है, वो पूछ रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बताओ. कोई अपॉर्चुनिटी, कोई क्वेश्चन को छोड़ो मत, जाने मत दो. समझ गए ना? तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है. थोड़ी सी अप्रोच की कमी हमको लगी थी जब हमने ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे. बाकी आप तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा बोल रहे थे. अप्रोच बिल्कुल वो रखो, आप क्या कहते हैं उसको, ऑफेंसिव. क्वेश्चन के प्रति ऑफेंसिव रहना, डिफेंसिव नहीं. समझ गए ना? जी सर. सर बाकी प्रेजेंटेबल था. प्रेजेंटेबल
बहुत अच्छा। इस बार आपने वो चीज़ जो आपकी इंक्लूड नहीं की वो बहुत अच्छी लगी सिविल सर्विस एग्जाम्स को, और बाद में जो होम ट्यूशन और ये सारी चीज़ भी अच्छे से ऐड की ताकि गैप जो है वो दिखे ना, ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने सिविल सर्विसेज का गैप बताया नहीं, वो तो वो 4 साल दिख रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 चीजें उसमें और ऐड करिए आप। सर ताकि मैंने वो वैसे बेहतर- बीएड वगैरह भी किया था तो नहीं वो तो बताना नहीं करना है। हाँ, वो नहीं बताना, कुछ और ऐड करिए यहाँ पे, ट्यूशंस वगैरह जो भी कुछ भी जैसा भी कुछ है कुछ और ऐड कर लो, बाकी ठीक है, चलो।